do not exit. We request the audience, while the play is on, do not exit. Hello everyone, I'm Devyani and I'll be your host for tonight. And I welcome you all to the Battle of Best Talents, the main dramatic general championship MDGC 2015. I'd like to give a warm welcome to all our judges here and who are not only great versatile theatre artists but are also courteous enough to come and judge this show. Firstly, I'd like to welcome Mr. Virendra Saxena, sir, who's popularly known as Viru and is an accomplished actor who hails from a small city called Mathura. Initially trained from the prestigious National School of Drama, New Delhi, a happy-go-lucky and truly professional Virendra sir is currently based in Mumbai. He's designed, scripted, directed, and acted in 130 plays. In theatre, he has worked with internationally renowned artists like Fritz Benowitz, Leon Augusta, Barry Joan, and many others. He's won Best Director and Best Play Award from Sahitya Kala Parishad, New Delhi. For 4 years, he was a member of Censor Board of India and has also exhibited paintings and sketchings on occasions. He has worked in movies like Khamosh, Houseful 2, A Wednesday, and many more. Next, I'd like to welcome Mr. Ravi Mahashabde sir, a trained actor from National School of Drama. In addition to having done theatre for 15 years, he's directed and acted in many plays. He's also worked in movies like Bombay Velvet, Saheb Biwi or Gangster 2, and TV serials like Crime Patrol, CID, and many more. Next, I'd like to welcome Mr. Amol Parashar sir, a great Indian actor. He's acted in plays, TV commercials, and films. He's set to star in Traffic, an upcoming thriller film. He was also the dialogue writer for the film Jackpot. He has 7 years of experience with theatre and has performed a play in International Theatre Festival in UK. He's worked with directors like Gemini Pathak, Chandan Sanyal, Akash Khurana. His major plays are Dirty Talk, Spunk, and Two Blind Mice. We welcome you all, sir. Now moving on, we have our first performance by Slot 1, and it's an originally scripted play named Kalakar. Slot 1, time starts now. आंखें निकाल कर मेज पर रख दी और लगा देखने, कोई देख तो नहीं रहा। मैं कौन मैं?
मैं हूं। या नहीं? सब झूठ है, सब स्क्रिप्टेड है। सुनो, इट्स ऑल रिकॉर्डेड। जो भी एक खूबसूरत चेहरा है, हर एक मुखड़े के लिए एक ही चेहरा है, अदाकारी। जो भी चेहरा हर मुखौटे के पीछे है, वही तो है अदाकार, कलाकार। मैं हूं या नहीं? Am I an illusion? It's all recorded. अरे पहचाना नहीं? कलाकार हूं, वही जो मस्करे के पीछे अपनी शक्ल छुपाता है, शक्ल पर आई खोखली मुस्कान के पीछे अपने सारे दर्द समेट लेता है। वो जो हथौड़ा लिए बैठता है ना पत्थर में, चिराग चेहरे की, या कभी कोरे से कागज जाने से मिथ्या रंग से काट सर। चश्मा उतार दो, उतार। कौन सी रामलीला से उठा के लाए हो उसे? ऐसे बनाऊंगा अपना नाटक? मजाक चल रहा है क्या यहाँ? सर एक और मौका देखिए ना सर। मैं 200 खड़े तेरे जैसे बाहर, ऐसे मुंह उठा के चले आने से एक्टर नहीं बनेगा, एक्टिंग भी आनी चाहिए। नेक्स्ट, अगले को भेजो यार। सर एक और मौका देखिए ना सर। नौरीन कुमार का नाम सुना है तुमने? वैसी एक्टिंग चाहिए मुझे, वही निकाले से बाहर। नेक्स्ट। नौरीन कुमार, जीवन और अभिनय। नौरीन कुमार, इसी की तो बात कर रहा था ना ये डायरेक्टर। ले जाता हूं इस किताब को, लेकिन ये तो चोरी होगी, पर एक्टिंग भी तो सीखनी है। चोरी 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 एक्टिंग कैसे सीखे? एक्टिंग कैसे सीखे? एक्टिंग कैसे सीखे? एक्टिंग कैसे सीखे? चोरी 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 एक्टिंग एक्टिंग चोरी 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 एक्टिंग एक्टिंग चोरी 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 चोरी। ले जाता हूं इस किताब को। ठीक है ना यार, हर कोई हर ऑडिशन में थोड़ी ना सेलेक्ट होता है। कभी डायरेक्टर खराब होता है, कभी एक्टिंग खराब होती है, तो कभी दिन बुरा। यार अल्फिया, ऐसा भी तो नहीं होता ना कि किसी भी ऑडिशन में सेलेक्ट ना हो। एक कबूतर चिट्ठी लेकर पहली पहली बार उड़ा,
मौसम एक गुलेल लिए था, पट से नीचे आन गिरा। तूने तेरा वक्त खर्च कर लम्हा वो तैयार किया। हमने घर बैठे बैठे ही सारा मंजर देख लिया। Listen, I understand यार, but you have to keep trying. That's all you can do. यार मैं पिछले 3 सालों से ट्राई कर रहा हूँ ना। अच्छा, let me tell you a story. मैं ना तुम्हें चाइनीज बैंबू यार मुझे पता है तुम्हारे चाइनीज बैम्बू की स्टोरी 10,000 बार सुना चुकी हो तुम। जब भी मैं डिप्रेस होता हूँ तुम एक नई कहानी लेके शुरू हो जाती हो। And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music. You know who said that? मुझ पर ना अपनी राइटरगिरी झाड़ना बंद करो। कभी कभी बोर कर देती हो तुम। मुझे लगता है मैं भी बोरिंग हो गई तुम्हारे लिए। No, Alfia. Then why don't you listen to me? Because this is not helping me. Don't lose heart. That's all I'm saying. अभी कोई पॉइंट नहीं लगता यार। मन करता है छोड़ दो बस। बहुत हो गया। तुम ना अपने इस छोटे साइज के दिमाग को चलाना बंद करो। Your brain has become like you, छोटू सा। तो तुम्हारे साइज के हिसाब से तुम मोटी बुद्धि वाली हुई ना? What? Did you just call me मोटी? मजाक कर रहा हूँ। इंसान को बवासीर हो जाए तो क्या करे बेचारा? ना खून रुकता है और ना मजाक कर रहा हूँ। अरे पता है, I have a good news. I just got a call from the publisher's office for my first book और मैं आज ही 3 दिन के लिए दिल्ली जा रही हूँ। Congrats. काश मैं भी कोई अच्छी खबर ला पाता। हन, it's all right. तुम भी लाओगे। हजारों बार फेल हो जाओ पर सक्सेसफुल तो एक ही बार होना होता है ना। You just have to get lucky once. And believe me, you are this close. Idiot, अब मेरे सरप्राइज का इतना भी कोल्ड रिएक्शन मत दो। अल्फिया मैं खुश हूँ। See, I'm smiling. कमाल की पहेली है मुस्कुराहट भी। जितना बताती है उससे ज्यादा छुपा लेती है। अल्फिया, तुम घर जाओ। पैक योर स्टफ। मैं आता हूँ। I'll drop you to the airport. और तुम? मुझे थोड़ा वक्त दो ना प्लीज। I need some time alone. I get it. You know what? You take your time. I'll see you soon. जो तुम जानते हो, जो तुम समझते हो, वो तुम नहीं हो। पर फिर भी उसी का चेहरा, उसी की पहचान, उसी को दिखाते हो तुम। यही तो है अदाकारी। एक खेल है। कोई खेल थोड़ी है अदाकारी। भाई, भाई, माचिस होगी क्या? सही वक्त पर माचिस मिल जाती तो दुनिया ना जला देते। कौन हो तुम? मैं वो रंग हूं जो अंधे ने भी देखे हैं कभी। मैं वो अल्फाज हूं जो गूंगे ने भी कहे हैं कभी। मैं वो ख्वाब हूं जिसे जागती आंखों ने देखा है। मैं आईना हूं या सिर्फ एक परछाई? मैं कौन हूं? मैं हूं या नहीं? तुम अभी अदाकारी के बारे में कुछ बोल रहे थे ना? एक्टिंग? अजीब बेवकूफ इंसान है। It's all scripted. It's all written. सफेद पन्नों की पीली किताब, yellow pages, white book. No.
white pages, yellow book. येलो बुक? नौरीन कुमार की किताब? कहीं इसने मुझे चोरी करते देख तो नहीं लिया? नहीं नहीं, पागल है साला, ऐसे ही बकबक कर रहा होगा। ईश्वर अवतार लेता है, अदाकार किरदार लेता है, और उन लम्हों में जब ईश्वर अवतार ले रहा होता है और अदाकार किरदार ले रहा होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता इन दोनों में। दोनों ही अंत और शुरुआत की दहलीज पर खड़े होते हैं। फर्क इतना होता है कि वो ऊपर बैठा अपना चक्र घुमा रहा होता है और अदाकार नीचे मंच पर यथार्थ से लड़ रहा होता है, एक नए सृजन में। ये मुठभेड़ सरल नहीं होती। जिस दिन से तू इस घर में आई है सब बर्बाद हो गया है। मेरी माँ ठीक कहती थी, कलंकिनी है तू। नसीब फूटा था तेरे बाप का, जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। तू जैसी डायन को घर से निकाल फेंकूंगा मैं आज। पापा, माँ को छोड़ दो, लग जाएगी। तमाशा शुरू होने वाला है। पर्दा उठ चुका है। दर्शकों को रोशनी दिख रही है, किरदारों को अंधेरा। इसी रोशनी और अंधेरे के बीच नाटक कहीं शुरू हो चुका है। अदाकार पहला शब्द बोलता है। उल्टा छोड़ दो बिस्तर का किनारा। आज तुझे घर से बाहर निकाल के ही छोड़ूंगा मैं। मुझे छोड़ दो। वो लल्ला भी घबरा रहा है, देखो। मेरे जाने से कुछ बदल जाता तो मैं अच्छा ही चाहती ना। मैंने कुछ नहीं किया। कमीनी, सब तेरी मनहूसियत के कारण है, जो इस घर में कभी खुशहाली नहीं आती। और जब तक तेरा ये मनहूस चेहरा यहाँ रहेगा ना, कुछ नहीं बदलेगा। आज तेरी छाया ही दूर कर दूंगा इस घर से। माँ को छोड़ दो ना, मैंने कुछ नहीं तो किया अच्छा है। लग जाएगी तुझे। अदाकार का मन एक सांप की तरह होता है। बड़ा होने के लिए उसे अपनी कैचुली खोनी पड़ती है, दूसरे अस्तित्व में समाने के लिए, नई पहचान बनाने के लिए। फिर वो चंद लम्हों के लिए ही सही अपना अस्तित्व खोना पड़ता है। अपने वजूद को उस हद तक भूलना पड़ता है कि सारे वजूद हासिल कर ले। खुद को अपनी निगाहों से तो सही, पड़ोसी की निगाहों से भी देखना पड़ता है। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं। हर गजल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। अदाकार खुद से भिड़ जाता है उस हद तक कि उसे नाटक के बाहर भी नाटक दिखने लगता है। सामने दिखने वाला हर इंसान उसे उसी तमाशे का हिस्सा लगता है जिस तमाशे की कहानी उसके इर्द गिर्द लिखी गई है। धीरे धीरे उसे नाटक की पटकथा समझ आने लगती है। अंतर्द्वंद्व होने लगता है, झूठे पर्दे गिरने लगते हैं। एक बारीक सी रस्सी से उसे सच की गहराई का अंदेशा होता है। धुआं छटने लगता है। महज वक्त की अदाकारी में वो खुद को इतना खो देता है कि फिर एक दिन अदाकार अपने आप से पूछता है, मैं हूं या नहीं? चुप हो जा, चुप हो जा। बंद बंद रोना बंद कर, बंद कर। तू बोझो।
सलाखों से बने पिंजरे की कैद लोहे के पिंजरे की कैद से कठिन होती है। आप एक शख्स की तलाश कर रहे होते हैं, इस उम्मीद में कि कोई आएगा और आपको आजाद कर देगा। यह वक्त निर्णय लेने का होता है। जिस लम्हे में हम उस शख्स को खुद में ढूंढ लेते हैं, सलाखें पिघलने लगती हैं। आपकी अंतरात्मा आपसे कहती है, मेरे दिल पर हाथ रखो, मेरी बेबसी को समझो। मैं उधर से बन रहा हूं, इधर से ढह रहा हूं। कभी दिल में आरज़ू सा, कभी मुंह में बद्दुआ सा। मुझे जिस तरह भी चाहा, मैं उसी तरह रहा हूं। लगता है तुम्हें किसी चीज की तलाश है। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिनके जवाब तुम ढूंढ रहे हो। तुम मेरे घर में कैसे? दूर दूर दूर। मैं वहां हूं, इसका यह अर्थ नहीं कि मैं यहां नहीं हूं। मैं कुल हूं, जो है और जो होगा, मैं उन्हें जोड़ता हूं। मतलब? तुम्हारी तलाश। क्या है ये? चाबी। किस चीज की? उस अदाकार की जिसको तुम ढूंढ रहे हो। विचित्र ख्याल है, पर सच यही है कि एक्टिंग इज द ओनली टाइम इन लाइफ व्हेन वी आर कंप्लीटली रियल। कहने को तो हम प्रिटेंड कर रहे होते हैं, एक्ट कर रहे होते हैं, पर वाकई बड़ा विचित्र है ये कि जो हम मंच पर होते हैं वो हमारा सबसे ईमानदार रूप होता है। It's really very difficult to be oneself in a social setup, जिसे हम यथार्थ समझते हैं। हम वाकई सबसे ज्यादा झूठे तभी होते नहीं, बनना पड़ता है। कई परतों में छुपा होता है हमारा स्वरूप। दोस्त से लड़ाई हो गई, आप बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, पर आपको मालूम है ज्यादा जोर से बोला तो कहीं दोस्त खफा ना हो जाए, तो हम कह देते हैं कि कोई बात नहीं। कितना कुछ होता है कहने को, पर हम झूठ बोल देते हैं। अदाकारी करना बक्से खोलने की तरह होता है। एक के बाद एक किरदारों से रूबरू होते हैं, अगला बक्सा खोलने की फिराक में, और इसी बीच हम अपना वो अंश पा लेते हैं जो हमारे ही भीतर था, पर शायद हमें अंदेशा भी नहीं था। अदाकार मंच पर होता है, किसी और की लिखी कर रहा होता है, किसी और की कही कह रहा होता है। एक और किरदार सामने आता है, पर यही तो काम है अदाकार का, बक्से खोलना, खुद को ढूंढना। अदाकारी की खूबसूरती यह है कि कुछ और बनने की चाह में हम खुद के और करीब आते हैं। शिक्षण शुरू होता है, विद्यार्थी बक्से बंद करने लगता है, उसकी दृष्टि से धुन हटता है, वो किरदारों को समेटने लगता है अपने भीतर, जैसे कपड़ा हो कोई, और उसी की सिलवटों में कहीं उसे खुद का एहसास होता है। अरे ये तो पुलिस वाला है, ये तो वो अखबार वाला है। विद्यार्थी तैयार हो चुका है। अदाकारी जिंदगी के सारे किरदारों को खुद में समेटने जैसा है।
शिक्षक पूरा हो चुका है. Like I said, acting is the only time in life when we are completely real. हम बिल्कुल सच बोल रहे होते हैं, 100%, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है झूठ बोलने को. जो लिखा होता है वही निभाना पड़ता है. असल जिंदगी में तो पग पग पर झूठ बोलना पड़ता है. मंच पर सच का आईना होता है. शायद इसीलिए कहते होंगे, एक्टिंग इज नॉट प्रिटेंडिंग, एक्टिंग इज बीइंग. अरे आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूं, मैं कलाकार, वही जो मस्करे के पीछे अपनी शक्ल छुपाता है, शक्ल पर एक खोखली मुस्कान के पीछे अपने सारे दर्द समेट लेता है. वो जो हथौड़ा लिए बैठता है ना, पत्थर में एक मुखड़ा ढूंढने की फिराक में, या कभी किसी कोरे से कागज पर भी अनजानी सी मिथ्या को रंगों से सजा देता है. हाँ, मैं वही हूं जो पांव में रबड़ के जूते डाले मेले में एक पांव से संतुलन बनाता और दूसरा रस्ते पर टिकाता है. वो भी मैं हूं जो हर नुक्कड़ पर छोटी सी दुकान लगाकर बैठता है, हाथों में कालीख लगाए, जमाने के फटे जूते सिलता हुआ. आपने मुझे अक्सर मेरे बंदर के साथ भी देखा होगा, वो जो मेरे कंधे पर बैठता है, मेरे डमरू की डमडम पर इधर उधर उछलता हुआ, अपनी भवें सिकुड़ता हुआ. आपने मुझे अभी नहीं पहचाना ना? कहा तो मैं वो हूं जो पिछले 40 सालों से उसी चटाई पर बैठा सूत काट कर साड़ियां बना रहा है, काली, नीली, सफेद, हर माहौल के लिए, हर मजहब के लिए. मैं वो हूं जिसके विचार और कलम से न जाने कब तक मुझ जैसे कलाकार बनते रहेंगे. कुछ किरदार पल में डूब जाएंगे और कुछ सदाओं बनते रहेंगे. Splendid! Splendid performance. That's what I was looking for. लगता है मेरा थप्पड़ कमाल कर गया. क्यों? थैंक यू सर. कैसे सीखा? I mean really, इतना इंस्पिरेशन कहाँ से लाए तुम? सर सच कहो तो आप ही की वजह से. मेरी वजह से? एक थप्पड़ ने इतना चेंज कर दिया क्या? नहीं सर, वो जब मैं पिछली बार आपके ऑडिशन में आया था तो आपकी किताब चुरा कर गया था. किताब? मेरी कौन सी किताब? सर वो वहां पड़ी थी ना, वो पीले कवर वाली, वो नौरीन कुमार की ऑटोबायोग्राफी. नौरीन कुमार की ऑटोबायोग्राफी? हाँ सर, उसी से सीखा हूं मैं. जो भी है, listen, Noreen, I don't have time for all this. By the way, congratulations, you have been selected. Guys, we have a new lead actor, Noreen Kumar. And Noreen, I need to leave now. And make sure you aren't late for the rehearsals tomorrow, 9 a.m. Pack up! ये तो पढ़ी किताब, नौरीन कुमार, जीवन और अभिनय. डायरेक्टर तो बोल रहा था ऐसी कोई किताब ही नहीं है. लेकिन अगर मैं नौरीन हूं तो वो इंसान कौन है? वो अजीब सा आदमी. वो कर रहे हैं मुझ पर संजीदा गुफ्तगू. मैं क्या बताऊं, मेरा कहीं और ध्यान है. देखे हैं हमने दौर इतने, अब खबर लगती नहीं.
पांव तले जमीन है या आसमान है? तुम बार बार मेरे घर में कैसे आ जाते हो? क्या सिर्फ मैं ही तुम्हें देख सकता हूं? वाकया कुछ ऐसा ही रहा है हमारा। ना आने की खबर, ना जाने का पता। तुम हमेशा ऐसे ही बातें करते हो। पृष्ठ 6 अध्याय 2 नौरीन का बचपन। उस दिन पहली बार पिताजी ने मां पर हाथ उठाया, बेरहमी से मारा मां को, जैसे वो कोई इंसान ना हो, कोई कुल्हाड़ी हो जो बेतरतीब किसी पेड़ को काटे जा रही हो और डाली डाली करके मेरी मेरी मां मां टूटती जा रही हो। मैंने पड़ोसियों की आवाजें निकालनी शुरू कर दी। हाँ, क्योंकि उसी से चुप होते थे वो। मेरे पिताजी हर रोज यहाँ मारपीट होती थी और मैं बार बार कभी शर्मा अंकल, कभी विनोद, कभी राजू के पापा की आवाजें निकालने लगा। अदाकारी का कीड़ा शायद तभी काट गया मुझको। किससे बात कर रहे हो तुम? मैं हूं या नहीं? किसी से नहीं। They say God has created this universe because he had. But maybe he created this because he was obsessed. Passion often strikes a chord with obsession. There's no fine line as to where passion ends and obsession begins. At times, it's enough to create a being out of thin air, a person in all flesh and blood. Noreen, they say. कलाकार पर्दा गिरता है। Coming up next is the slot 2 presenting the play Shatranj Ke Khiladi, which has been adapted from Munshi Premchand's story. Slot 2 time starts now.
और आप है मीर रोशन अली। हम लड़ नहीं रहे, खेल रहे हैं। हम असली नहीं, अक्ल के घोड़े दौड़ाना ज्यादा पसंद करते हैं। तभी तो शतरंज जैसे पुराने और अजीम खेल को हमने अपना मैदान बना रखा है। मकबूल मियां, मकबूल मियां। बेचारा मकबूल, न जाने कितनी चिल्में और भरी पड़ेंगी आज, क्योंकि न जाने कितनी ही और लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी यहाँ पर। अजीब लड़ाइयों का सिलसिला तो उस दिन से जारी है जब से हम दोनों दोस्तों को इस खेल का चस्का लगा है। अब आप पूछें कि भाई हम दोनों को और कोई काम नहीं है क्या? जी बिल्कुल नहीं भाई, जागीरदारों को भी कोई काम होता है। जी माशाल्लाह, दोनों पुश्तैनी रजिस्टर ठहरे, और वो भी लखनऊ। मीर साहब जी कहिए। शतरंज का एक अहम असूल होता है। अच्छा जी, कभी तोड़ा नहीं जाता। कौन सा असूल है? आपने जिस मोहरे को छू दिया बस उसी का चलना लाजमी है। अच्छा, हम तो हमेशा वही मोहरा चलते हैं जिसे हम हमेशा हमेशा आप एक मोहरा छूते हैं, पल भर चलते हैं, दूसरा मोहरा चल देते हैं। अभी आपने छुआ, रुक चल दिया घोड़ा, अभी आप उठाएंगे। अजी माफ कीजिए, हो गई गलती, ध्यान रखिए आइंदा से। आप इतने खफा क्यों होते हैं? चलिए चाल चलिए आप। चल मेरे प्यादे, बिस्मिल्लाह। मीर साहब जी कहिए। बादशाहों का खेल है, खेलों का बादशाह। वाह, हमें तो इस बात से फख्र होता है कि हिंदुस्तान की जात। ओह वाकई, ये ईरान से नहीं है? जी नहीं भाई, हिंदुस्तान में पैदा हुआ और विलायत तक पहुंचा। जी खूब खूब, आप तो बड़े शातिर निकले। और जी हम तो हिंदुस्तानी वजह से खेलते हैं। और कोई और भी वजह होती है क्या? जी आपको ये भी नहीं पता? भाई अंग्रेजी वजह। अब शतरंज भी कंपनियां मालदारी में आ गया क्या? खूब खूब मीरा खूब। अच्छा वैसे इन दोनों वजह में फर्क क्या है? जी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अंग्रेजी वजह में वजीर को कहते हैं क्वीन। क्वीन? जी हाँ, क्वीन यानी मल्लिका, और मल्लिका आमने सामने ही रहती है। आमने सामने? जी हाँ, और पहले की वजह में ये प्यादा जो है 2 घर चल सकता है। प्यादा 2 घर? जी हाँ, और अगर मुखालिफ सिरे पे पहुंच जाए तो मल्लिका में तब्दील हो जाता है। जी अंग्रेज भी बड़े कमाल करते हैं, पर इन तब्दीलियों से फायदा क्या? जी कुछ नहीं, बातें झटपट खत्म हो जाती है। क्यों? उन्हें हमारा खेल सुस्त लगता है क्या? जी खेल भी और सवारियां भी, तभी तो रेलगाड़ियां आ रही हैं। और हाँ, तारघर मना भूल जाएगा। जी तारघर तो कब के आ गए, पर हमें एक आंख नस्वा दे। क्यों? जी बुरी खबरें जो जल्दी ले आते हैं। बुरी खबरें? जी हाँ, आपने नहीं सुना? जी हम सुनते उनते कुछ नहीं, हम बस खेल खेला करते हैं। मिर्जा साहब, हंसने से बला नहीं टलती। सुना है कंपनी अब फौजें लखनऊ तक पहुंच चुकी है। जी बहुत गजब हो रहा है। या अली जी मिर्जा साहब, आप हंसते बहुत हैं। मीर साहब, आप अंग्रेजी वजह से शतरंज तो सीख गए, लेकिन अंग्रेजी चाल अभी तक नहीं सीख पाए। वो कैसे? जी देखिए, अफगानिस्तान में लड़ाई है जी, नेपाल में लड़ाई है जी, पंजाब में भी लड़ाई है जी। उन लड़ाइयों की दरकार है पैसा, और पैसा लाए कहाँ से? कमी तो ठहरी कंगाल। कहाँ से लाए पैसा? बादशाह अवध के। अवध के बादशाह? जी हाँ। मगर कैसे? बड़ी आसान तरकीब है। बादशाह को कह दो कि रियायत हमसे नाखुश है, और अगर पैसे ना भरे तो कब्जा कर लेंगे। भाई बादशाह तो मुंह चुप करके पैसा भर देंगे, कंपनी को और हम भी। मिर्जा साहब की बेगम साहिबा को शतरंज से इतना द्वेष था कि अफसर खोज खोज के अपने पति को लताड़ दी जी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वह सोचती रहती और इधर बाजी भी जाती, और जब रात को मैं सो जाया करती, उसी के बाद मिर्जा साहब भीतर जाया करते। हुजूर, दुल्हन बेगम बुलान है। सरकार, दुल्हन बेगम बुलान है आपको। क्या बात है? अब हम ही का जाने सरकार। हुजूर, यह तो हम आते हैं। बिरयानी अच्छी बनी क्या? क्या यही कहने के बुलाया? जाने कुछ भी आज बेगम साहिबा का मिजाज बड़ा गर्म लग रहा था। अब इतनी ताप कहाँ कि बेगम के सर में दर्द हो। मियां यहाँ बैठे
शतरंज खेलते रहे। ऊका सर में दर्द है मालिक, कहिए ऊका सर में बहुत दर्द है, तुरंत बुलाए हैं आपको। ये लीजिए शह, शह बजाइए मीर साहब। हम आप जाकर हो क्यों नहीं आते? आप क्यों ना चले जाएं, आपकी 2 बार में मात जो होती है। जनाब इस भरोसे में ना रहिएगा, ऐसी चाल सोची है कि आपके मोहरे धरे के धरे रह जाए और मात हो जाए। क्या पर आप जाकर क्या चाल सोची है आप? जी बताइए क्या चाल सोची है? भाई इसी बात पे आपकी मात करके जाएंगे हम। जी हम खेलेंगे नहीं, जब तक आप जाकर सुनना आते हैं हम खेलेंगे नहीं। साहब बिना बात परेशान होते, सड़क वड़क कुछ नहीं है, बस बहाने हैं हमें परेशान करने के। अजी जाकर सुनाइए, उनकी खातिर तो आपको करनी पड़ेगी। अच्छा आप भी ना कभी-कभी गजब करते हैं। एक और साल चले? हरगिज नहीं, जब तक आप जाकर सुनना आते हैं हम औरों को हाथ तक ना लगाएंगे। अजी हाँ सुनिए, बेगम साहिबा को हमारे आदाब जरूर फरमाइएगा। और आप पीठ पीछे हमारे मोहरे ना बदल दीजिएगा। जी ऐसी गुस्ताखी की है हमने कभी? बेगम साहिबा हम आ गए। बेगम साहिबा हम आ गए। ये कह रही थी कि खुदा ना खासा आपके सर में दर्द है। आपको क्या? जी क्या मतलब? अरे आप बड़े हैं, हमारे दर्द की परवाह करने वाले हैं। बेगम कैसी बातें कर रही हैं, मतलब बेगम जा हमारा तो जम भी निकला जाए तो भी आप हमारे मुंह में पानी तक न डालने आए। अरे बेगम कैसी बातें कर रही हैं, आपकी वजह से अपना खेल थोड़े छूट गया है। आप लगे कोई ऐसे खेल को, हमको का खेल है। जी वो तो है, लेकिन क्या करिए मीर साहब में बड़े रत्ती आदमी हैं, आ जाते हैं तो हमें मजबूरन खेलना पड़ता है। भाई हमें शौक थोड़ी। तो दुत्कार क्यों नहीं देते? जी ऐसे कह रहे दुत्कार आते भाई बराबर के आदमी है, उम्र में दर्जे में ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, मैं ही दुत्कार देती हूँ, नाराज होंगे हो जाए। हीरिया बाहर से शतरंज उठा ला और मीर साहब से कहना कि मियाँ अब ना खेलेंगे, आप तशरीफ ले जाइए। बेगम साहिबा कैसी बातें कर रही हैं, हमारी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। अरे हीरिया रुक कहाँ जा रही है? अरे बेगम साहिबा क्या कर रही है? अरे रुक जाइए, ऐसा ना करिए, हमारा खेल चल रहा है। अरे रुक जाइए, आपको हजरत तो लेके कसम। अरे क्या कर रही है बेगम साहिबा? अरे छोड़ी। क्या कर रही है हमारी? चेहरा दिया था हमने। मीर साहब जी फरमाइए फरमाइए। आपको एतराज ना हो तो अब हम आपकी हवेली में खेलना पसंद करेंगे।